اچھا ہے کہ آگے آگے آ جائیں، بڑی جگہ خداوند نے ہمیں دی ہے. اور لاسٹ تھرسڈے کو کیا سنایا تھا جی؟ ہاللیلویا، لاسٹ تھرسڈے یہی تھا. ہو سکتا ہے کہ لاسٹ تھرسڈے سے لاسٹ تھرسڈے اب نہ ہوں، ممکن ہے، کیونکہ جس تھرسڈے آپ ہو اس تھرسڈے یہی ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پچھلی جمعرات کو کچھ اور تھا. ہاں جی، وہ وہی بتائیں گے جو پچھلی جمعرات کو ادھر تھے. پریز دی لارڈ، آمین، ہاللیلویا. میری بھی چھٹی تھی شاید لاسٹ تھرسڈے نا، کیونکہ میں نے تو کلام سنایا تھا، اس لیے میں چھٹی پہ تھا. نہیں، ہاللیلویا. بہرحال یہ ہے کہ کوشش کرے کہ یاد رہے. تو چلے حوالہ مل کے ڈھونڈے ہمیشہ کی طرح. پریز دی لارڈ. اور خداوند بڑے مہربان ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل بے فکر دیکھیں، یہ میری درخواست ہے، وقت گزارے خداوند کے ساتھ. اور یہ سوچ کے کچھ غلط نہیں ہے کہ آپ کلام تیار کر کے جاتے ہیں، لیکن مانگے خداوند سے کہ وہی بات ہے کہ وقت گزارے اور جی بھر کے آپ کو بالکل یہ فکر ہی نہ ہو کہ میں نے کیا سنا ہے. کہ ٹھیک ہے خداوند، جائیں گے جو آپ میرے دل میں اس وقت ڈالیں گے وہ میں لے کے بیٹھ جاؤں گا، وہ میں شیئر کر لوں گا. آمین، ہاللیلویا. سو اس کو قطعی طور پہ اس طرح نہ لیں کہ جیسے میں کہوں کہ مجھے تو جناب سب کچھ آتا ہے یا نہیں. اس طرح نہیں ہے. کہیں پہ بھی ابلیس کو موقع نہیں دینا. سوچیں، خیالات روح کے اندر ہوتے ہیں، بہت کچھ جو وقت گزارا ہوتا ہے اس میں سے، اسی میں سے. کیونکہ آپ کو بٹھا دوں یا یہ بات کر لوں؟ چلے ایک بات کر لیتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے جب وصیت کی تو وصیت کھلتی ہے کب؟ وصیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ موت کے بعد کھلے گی. ٹھیک ہے، تو وصیت میں جو بات یسوع مسیح نے کی وہ شادمانی کی، شالوم کی. اسی وجہ سے میں آج انکریج کرتا ہوں کہ ہماری بڑا جہاز، بڑی گاڑی، خدا کا شکر ہے کہ یہ سونا چاندی اس کے لیے، اگر اس کے فرزندوں کے لیے نہیں تو کیا ساری کچھ ابلیس کے فرزندوں کے لیے ہے. لیکن اچھی ٹیسٹ منی آج دنیا میں اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے وصیت میں کیا کہا؟ جانے سے بیشتر کیا کہا؟ میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں. یہ سب سے بڑی ٹیسٹ بنی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یار ان کے حالات کا، ہواؤں کا، فضاؤں کا کچھ اثر نہیں ہوتا. تو وہ خدا روح القدس کے وسیلہ سے اور اس کے کلام کے وسیلہ سے. اور وہاں پہ ایک خاص بات کہی کہ روح القدس آئے گا اور وہ تمہیں سب باتیں جو تم یاد دلائے گا جو میں نے تمہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو سے شیئر کی یہ بات کچھ دن پہلے کہ یاد رکھیں کہ ان ایام میں اور آج کے ایام میں بہت فرق ہے. ان ایام میں انہی شاگردوں کو، انہی رسولوں کو یوز کرنا تھا. سو خداوند نے ان کے ساتھ 3.5 سال کی خدمت میں ساری باتیں ان سے کہیں اور لیٹر آن ان کو یاد دلا کر قلم بند کروا دی. آج ہم ڈیفرنٹ دور میں، آج ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ آج چونکہ اس نے ہمیں اس وقت ان کے کہا کہ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو تم سمجھو گے کیا، تو لکھو گے کیا؟ لیکن وقت آئے گا میں جلال میں پہنچوں گا، پھر روح کی صورت میں تارے اندر آؤں گا. یہ جو کچھ تمہیں بھولا ہوگا وہ بھی تمہیں یاد دلاؤں گا، اور پھر تم آنے والی نسلوں کے لیے روح القدس کی رہنمائی میں تحریر کرتے جانا. آج شکر گزار ہیں کہ یہ اس نے قلم بند کر دیا تاکہ ہم اسے پڑھیں، اس سے دل لگائیں، اسے اپنے دل میں رکھیں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں، اسے اپنے دل میں رکھیں، تاکہ باہر جب جنگ لڑنے کو تو وہ ہمیں یاد دلائے. ہم کلام سے ہی، کلام اور گواہی، مکاشفہ کی کتاب میں وہ کیسے غالب آئے؟ کلام اور گواہی کے وسیلہ سے، جو ہماری زندگی میں اس میں جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہے. آئے میرے ساتھ کھولیے گا مقدس پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام. ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم خداوند کے فضل سے آپ لوگ بیٹھے اور ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنتے ہیں. افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی اچھا تو یہ ہے کہ 15ویں آیت سے لیکن
मैं अभी आप लोगों के साथ 17वीं और 18वीं आयत पढ़ूंगा, लेकिन घर जाकर इसको जरूर पढ़े। 1, 2, 3 कि हमारे खुदावंद यसु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप से कहें कि खुदावंत मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाए, रूह कुद्दस मेरी मदद फरमाए। और एक बार फिर कहे, खुदावंद हमारे खादम की भी दिल की आंखें खोल दे। आमीन। हालेलुया। मुझे आपसे ज्यादा जरूरत है। ये ना सोचिएगा कि हाँ ये कैसे हो सकता है। तो बड़ी खूबसूरत बात जो बहुत साल पहले हमने जनाब चे से चाकू, चे से चॉकलेट, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। चे से चाकू, चे से चॉकलेट। तो आज इसको शुरू में बात हो रही थी, इसको जरा थोड़ा सा आज इस एग्जाम्पल को हम याद कर लेते हैं, जो बड़ी बहुत खूबसूरती से हमें बड़ा शाद करती है कि हम खादम हैं। कौन से वाले? चॉकलेट वाले। अब चॉकलेट और चाकू का ये क्या भेद है? मेरे साथ रहिएगा, जरा गौर से सुनिएगा कि एक माँ अगर देखे कि उसकी 1.5 साल 2 साल की बच्ची है या बच्चा है, माँ सब्जी काटने लगी, उसे अचानक ख्याल आया कि तड़का रखा था, जल ना जाए। काटते काटते वो तड़के की तरफ चली तो पीछे से बच्चे ने छुरी ब्लेड वाली साइड से पकड़ ली। अब मां ने वहां से जब देखा कि बच्चे ने यूं पकड़ ली है, तो जरा गौर कीजिएगा कि समझदार मां क्या करेगी, जो कि बहुत कम नजर आएगा। अचानक जैसे ही देखेगी मां क्या करेगी, नेचुरल में जरा देखिएगा क्या करेगी। बच्चे की तरफ भागेगी कि नहीं? सडन से भागेगी ना। तो जैसे वो एकदम उसका घबरा के उसका नाम लेगी, उसकी तरफ भागेगी, तो बच्चे की ग्रिप उस ब्लेड के ऊपर ज्यादा होगी और वो बच्चा जख्मी होगा। लेकिन अगर दावन की हिकमत तो मां रिलैक्स करेगी जरा, कि पकड़ने वाले ने तो पकड़ ली, अब या तो पकड़ने से पहले मैं उसे बचा लेती, अब तो उसने पकड़ ली। तो वो बच्चे की नाम लेके उधर खौफजदा होकर भागने दौड़ने की बजाय वो फ्रिज की तरफ जाएगी। वो चाकू का शोर नहीं मचाएगी, बल्कि वो फ्रिज की तरफ जाएगी और जाके चॉकलेट पकड़ेगी। और चॉकलेट पकड़ के बड़े आराम से धीरे से मुन्ना, अलाइजा, अलीशे कुछ उसकी तरह चॉकलेट, और वो बच्चे की तवज्जो जो है वो छुरी से चॉकलेट की तरफ लाएगी। और करीब आके जब उसके चॉकलेट तो छुरी जमीन पे, चाकू बच्चे के हाथ में, चॉकलेट बच्चे के, क्योंकि इससे पहले कि बच्चा चॉकलेट पकड़े उसे चाकू कहने की जरूरत नहीं, वो चाकू छोड़ेगा, चॉकलेट पकड़ेगा। पर्पस क्या है? चाकू छुड़ाना। पर्पस क्या है? हम खिदमत वाले, हमारे जिम्मे क्या लगा? ताकि लोग गुनाह छोड़े, पुरानी जिंदगी को छोड़े और मसीह की जिंदगी जिए। सो हम जाकर चाकू गुनाह का प्रचार करने की बजाय चॉकलेट मसीह यीशु की मोहब्बत, वो कुदरत, वो पावर जो उसके फजल की सूरत में है, उसे बांट रहे हैं।
खुदा को हाजिर जान के खुदावंद को गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से प्यार है। हमें गुनाह से उसी तरह ही नफरत है जैसे खुदावंद को नफरत है। खुदावंद को गुनहगार से प्यार है, हमें गुनहगार से प्यार है। और गहरे से समझना चाहते हैं, उस किसी से पूछे, किसी से जिसके खुदा न खास्ता अजीज को कैंसर हो जाए, उससे पूछे कि वो कैसी नामुराद चीज है। वो उस कैंसर से कितनी नफरत करेगा जितनी उसको अपने अजीज से मोहब्बत हो। क्यों जी, कैसा है? क्या उस अजीज से कैंसर के सबब से उससे नफरत कर सकते हैं? खुदा न खास्ता किसी के घर में किसी अजीज को, बहुत करीबी अजीज को कैंसर हो गया, उस शख्स से नफरत कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। उस शख्स से नफरत नहीं, लेकिन उसके अंदर जो बीमारी है, जो उसके अजीज को जानलेवा साबित होने वाली है, थोड़े दिनों में उसकी जान को ले जाएगी, उस बीमारी से उसे नफरत है कि नहीं? तब वो खत्म किसे करना चाहता है, अजीज को या बीमारी को? बीमारी को। सो खुदावंद क्या चाहते हैं? इंसान को मारना चाहते हैं या इंसान के अंदर जो इंसान के लिए जानलेवा बीमारी, वो क्या? गुनाह। सो खुदा किसे मारना चाहते? गुनाह को। तो बचाना किसे चाहते? इंसान। तो यही पर्पस है, याद रखिएगा। वो कल और आज पल के अब तक यकसा है। उसे गुनाह से नफरत है, गुनहगार से प्यार है। वो उसे बचाना चाहता है क्योंकि उसने इंसान बनाया और इंसान गुनहगार बना। उसने गुनहगार नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। उसकी फ्री विल, आजाद मर्जी जो है, उसने उसे गुनहगार बनाया। सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए और इस बात के लिए। अब ये इफसस की कलीसिया के नाम खत है, याद रखना है। ईमानदारों से मुखातिब है ये कलीसिया से। खुदा का बंदा पौलुस मुखातिब है, बेईमानों से नहीं। तो वो क्या कह रहा है? खुदावंद से मुकद्दस पौलुस की दुआ देखे दो जगह पे, जो दुआ है और मेरी ये दुआ है कि अगर हम कहीं ये इफसस का खत जो है, यकीन करें कि ये आपकी पहले दिन जब नई पैदाइश का तजर्बा पाते हैं, वहां से बुलावे तक सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। सो डिवीजन को मैं फिर आप लोगों से शेयर कर लूं। अगर आप लोग दिल लगाएं, ढूंढें, तो इतना कुछ मिलेगा कि पहले 3 चैप्टर जो है, पहले 3 चैप्टर मुकम्मल तौर से भरे हुए हैं कि खुदावंद ने आपके लिए क्या किया। मुकम्मल तौर से पूरे इसके अंदर एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगी का जब हिस्सा बनाएंगे तो नजर आएगा कि खुदावंद ने मेरे और आपके लिए क्या किया। और अगले 3 चैप्टर जो है वो ये है कि अब हमारी बारी है कि हमें खुदावंद में कैसे जीना है। दुनिया आज एक चीज को फोकस करके भाग रही है, गौर कीजिएगा, कि किसी तरह काम मुकम्मल करके सुकून पालो, आराम पालो, और नसीब नहीं होता। खुद जवान होता है स्टडी कि स्टडी के बाद जॉब आएगी, कुछ कोई रिलीफ नहीं मिलता। शादी हो जाएगी, कोई रिलीफ आगे नहीं मिलता। बच्चे आ जाते हैं, दुनिया कहती है कि किसी तरह आराम मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर समझ आ जाए कि इसके पहले बाब की पहली दूसरी आयत में कि उसने, वो कहते हैं कि उसने काम तुम्हारे लिए किया है, तुम बैठो उसके साथ। दुनिया कहती है दौड़ो, कुछ करो ताकि तुम्हें बैठने का मौका मिले। मसीही जिंदगी वो कहता है कि उसके साथ बैठो जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। जितना अच्छा उसके साथ बैठना सीखोगे,
जितना अच्छा उसके साथ बैठना सीखोगे उतना अच्छा चल पाओगे। मसीही जिंदगी दौड़ भाग के कुछ हासिल करने का नहीं, बैठ के पहले हासिल करो। और याद रखिएगा, हर शहादत कलाम मुकद्दस में से हमारी जिम्मेदारी, हम बात करें तो उसे शहादत के साथ आपको प्रूव करें उसका। 2 बहनें हैं, हमारी बहन मार्था और हमारी बहन मरियम। उनमें से एक बहन के पास क्या भेद है? ईमानदार बामुकाबला ईमानदार। याद रखिएगा, गुनहगार बामुकाबला ईमानदार क्या मिलेगा? गुनहगार का और ईमानदार का कोई मुकाबला है? तारीकी और नूर का क्या मुआवजा करेंगे? 200 वाट बल्ब का 400 के साथ मुआवजा करें, मजा आएगा कि 200 की लाइट ऐसी होती है, लेकिन 500 का 400 का लगाएंगे तो ऐसी होगी। ईमानदार बामुकाबला ईमानदार। मरियम खुदा की बंदी ने कदमों में बैठना सीखा तो बाकी सारी बहनों का इतर वापस आया, किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ। गई थी ना कब्र पे, किसी का इस्तेमाल हुआ? मासवाए उसके, उसे किसने तैयार किया? वो कब्र पे नहीं गई, वो उस यीशु के कदमों में बैठकर यकीनन रूल कुद्दस उसे उस मकाम पे ले गया कि जिसने उसे इसका यकीन करना सिखाया, जिसने उसे गाइड किया है। सारी बहनों में से वाहद खतून है जिसने उसके मसलूब होने से पहले उस पर इतर डाला या नहीं? और फिर मकाम क्या ले गई? पूरी दुनिया में जहां कहीं अंजील की मनादी होगी ये काम बयान किया जाएगा। फिर क्या था? कदमों में बैठना। फिर पढ़ ले, अभी मैं इधर आना चाहता हूं, कोई बात नहीं है, 8:30 तक ही हमने थोड़ा आज का मैसेज, उसके बाद हम फिर वर्शिप एंजॉय करेंगे, डोंट वरी। लेकिन बात जैसे कोई एक भी बात, अगर बात वही है जो रूह में उतर जाए वही असर दिखाएगी। इन दोनों बहनों में से उसने, अब मेरे साथ रहिएगा, इन दोनों की खिदमत को कभी कंपेयर करके देखें। मरियम कभी घबराई नजर नहीं आई। कदमों में बैठे बगैर हम भाग रहे खिदमत के लिए, थक जाएंगे, घबरा जाएंगे, थक जाएंगे, यीशु पर भी इल्जाम लगाएंगे और अपने हम खिदमत भाइयों पर भी। तो आगे क्या कहते, यीशु तुझे ख्याल नहीं कि मैं अकेली थक गई और देख ले। मरियम से कह कि वो मेरी मदद करे। थे यीशु ने किसकी सपोर्ट की? मरियम की। और मार्था तो बहुत सारी चीजों की फिक्र, तो वो किसी और के लिए नहीं कर रही थी। वो 12 गबरू जवान शागिर्द यीशु के साथ और उन्हीं के लिए खाना वाना तैयार कर रही थी। लेकिन बात क्या थी? खाना खाने, खुदावंद खाने से मना नहीं कर रहे, घबराने से मना कर रहे। घबरा कर, उकता कर, इल्जाम तराशी से। लेकिन अच्छी बात उसकी सीखने की बहुत है, घबरा जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बजाय इधर उधर करने के हमें गीबत, उधर सीधा यीशु के पास चले जाए, ये उसकी बड़ी अच्छी बात है। इसलिए हर कैरेक्टर में से अगर हम सीखना चाहेंगे तो मिलेगा हमें। आमीन, हालेलुया। अब देखिएगा जरा फिर टेस्टमनी, ये हम जो खिदमत वाले, हमारे लिए ये 2 कैरेक्टर बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल है। जैसे मैंने कहा, इतरुस का यूज हुआ, जहां कहीं इंजील की मनादी होगी ये सुनाया जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ वो नहीं गई कब्र पे, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि जिसने कहा मैं जी उठूंगा वो जी उठा। बाकी कब्र पे गई वो नहीं गई, अच्छा, लेकिन उससे भी पहले सुन ले, उससे पहले टेस्टमनी देखे। मार्था भी आई है, और आते मार्था भी गिरी जरूर है कदमों में कि जी अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। लेकिन जब मरियम आके यीशु के कदमों में गिरी है तो मामला फर्क हो गया। क्योंकि जिसके कदमों में आते हैं वो अंदर बाहर से हमें वाकिफ है, उससे कोई चीज हमारी छिपी नहीं है। और फिर टेस्टमनी सुन ले, आगे पढ़ ले कि वो यहूदी जो मरियम से मिलने आए थे,
रूल कुद्दस, याद रखिएगा, ये मुमकिन नहीं है कि रॉबिन्सन साहब या पास्टर सुहेल या भाई परवेज, कोई भी, मैं खुदा को हाजिर जान के कह रहा हूं, किसी की खिदमत रूल कुद्दस से बाइद नहीं होगी। नेवर एवर। हम इंसान भूल सकते हैं, खुदावंद कभी नहीं भूलेगा। वहां रूल कुद्दस ने तहरीर करवाया, नाम लेकर करवाया कि यीशु पर ईमान कौन लाए, वो यहूदी जो, क्योंकि वहां मरियम और मार्था के सब अजीज, लिखा जा सकता था कि वो यहूदी जो मरियम और मार्था से मिलने आए वो यीशु पर ईमान लाए। क्लियरली रूल कुद्दस ने तहरीर करवाया है, वो यहूदी जो मरियम से मिलने आए, क्योंकि मरियम को यीशु के कदमों में बैठकर उसके साथ वक्त गुजार के उसकी अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह की वो कुदरत और वो मसा, वो हजूरी, वो ममूरी के वो जब जाकर बात करती तो दिलों पर चोट लगती। वो यहूदी जो मरियम से मिलने आए यीशु पर ईमान लाए। सो ये हमारे लिए जो ये हर बात जो है इसके पीछे मीनिंग्स है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो जैसे मैंने कहा है, ये दिल की आंखें रोशन हो जाए कि हम ईमानदारों के लिए है। याद रखिएगा हमारी स्टेजेस है। हम जन्म के अंधे रूहानी तौर पर, क्योंकि आदम में हमारी रूहानी आंखें बंद, खुदा का रूह जुदा, गुनहगार। सो जैसे हम यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाते हैं तो हमारी आंखें खुलती है, खुदा का रूह हमारी रूह में आता है। लेकिन याद रखिएगा उसके बाद अगर ये इतना काफी होता कि उसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये इतनी शफात जो खुदा का बंदा पौलुस जो है, आए जरा 15वीं आयत मेरे साथ देखिएगा। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। किस लिए? सबसे पहली जिंदगी की प्रायोरिटी वो क्या बता रहा है? वो जानता है, ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने खुद कहा, अपने उस आसमानी बाप को देखो, इस घास को देखो, सुलेमान को देखो कि वो कितनी शान और शौकत रखता है। इसके बावजूद हमारा ध्यान किधर लेके गया कि क्यों इन फानी चीजों के ख्याल में, तलाश में इतना क्यों खो जाते हो? रूहानी, और यहां पर भी देखें कि वो जानते हैं, खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस भी जानते हैं कि हमें खाना भी है, पीना भी है, पहनना भी है, ये सारी जरूरतें हैं। लेकिन इसके बावजूद पहली दुआ जो कलीसिया के लिए, मुकद्दसीन के लिए, जो खुदावंद के हुजूर घुटनों के बल होकर वो दुआ करते हैं, वो क्या है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, ताकि तुम उस मिरास को, उस जलाल को, जो जलाल का बाप, तो हमारा खुदा जो है वो क्या है? जलाल का बाप है। बाप का मतलब निकालने वाला, बेटा का मतलब जो उसमें से निकला। सो जलाल उसमें से बहता है, उसमें से निकलता है, वो जलाल का बाप है। अच्छा, किस लिए तुम्हारी आंखें किस लिए रोशन हो? तुम्हें क्या देखो, करो, क्या देखो? हिकमत और मुकाशफा की रूह के साथ। प्रेज द लॉर्ड। जब अब आप हमेशा की जिंदगी की बात करते हैं तो क्या लिखा था कि तुम हमेशा की जिंदगी क्या है कि उस इल्म है उस खुदाए कदूस का, उस खुदाए कदूस को जानना क्या है? हमेशा की जिंदगी है। आमीन। वो जिंदगी जो खुदावंद की जिंदगी है। सो यहां पर मैं आपके साथ कोई दो वाकयात जिक्र जरूर करना चाहूंगा पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि जो इस खत में से जो मेरी अपनी जिंदगी बन गई है, आज मुझे दिल, यकीन करें कि बाजू का दुखी भी बहुत होता है कि बेशुमार जिंदगी हैं। आप याद रखिए, वो कहता है अब जो ऐसा कादर है, खुदावंद के प्रिंसिपल को समझे कि खुदावंद आप में से लेकर, खुदावंद चाहते हैं कि आप उससे ले, उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसका मसा, उसकी हजूरी, उसकी जिंदगी, वो सब कुछ आप रिसीव करें और भर जाए।
क्योंकि अगली दुआ जो है, आए मैं ये आयत आपके साथ पढ़ देता हूं, 3 बाब की 14वीं आयत। इस सबब से दूसरी बार फिर कलीसिया के लिए दुआ क्या करते हैं, इस सबब से मैं बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। और ये आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी का, मैं खुदावंद का खादम आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक आप अपनी जिंदगी का मरकज बना ले, पूरी जिंदगी इसके लिए कुछ भी नहीं है इसको समझने के लिए। और इसका रिजल्ट पता है क्या है? अब आगे जाकर फाइनल इसका निचोड़ क्या निकालते हैं, अब जो ऐसा कादर है उस कुदरत की तस्सीर के मुआफिक जो हमारे दिल के अंदर है, जो हमने रिसीव की है। जरा देखिएगा 20वीं आयत, 19वीं में है उसकी मोहब्बत, मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तस्सीर करती है, ये प्रिंसिपल शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे, ये समझना जरूरी है। खुदा ईमानदारों से क्या चाहता है कि उनके अंदर से निकाल कर उनके लिए इस्तेमाल कर। मुझसे और आपसे वो क्या चाहता है कि उसकी कुदरत को, उसके रूल कुद्दस की मदद के वसीला से, उसके कलाम और उसकी जी उठी कुदरत के वसीला से हम भर जाएं। और खुदावंद इंतजार करते हैं, याद रखिएगा, हमें उस मुकाम पर लाना चाहते हैं। अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, और प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं कि आज हम सोचते हैं शायद खुदा मेरी दरख्वास्त, यहां जो लिखा है, खुदा हमारी दरख्वास्त ही नहीं। आज कितने हैं जो ये समझते हैं कि अगर मेरी दरख्वास्त खुदा के हजूर मकबूल ठहरे तो मैं जनाब, लेकिन खुदा यहां पे मुतमिन नहीं है कि मैं किसी ईमानदार की, किसी फरजंद की सिर्फ दरख्वास्त कबूल करे। नो वे, खुदावंद यहां तक सेटिस्फाई नहीं है कि सिर्फ आपकी दरख्वास्त हो और वो दरख्वास्त कबूल हो जाए। आज दुख के साथ उसके बेटे और बेटियां जो वो गिले शिकवों में रहते कि खुदा हमारी, क्योंकि उसके प्रिंसिपल हम नहीं समझ पा रहे। उसने, यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में बहुत शॉर्ट बातें की। अच्छा आदमी दिल के खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और ये उसी को ही उसने डिटेल दे दी है। लेकिन इसका पिछला जो हिस्सा 3-4 आयत, ये हम पर वाजिब है। अगर हम इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते तो फिर ये आयत जो है ये उन्हीं के लिए है, जो इसमें दूसरी राय नहीं है। मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, मसीह बसे। मसीह कैसे बसेगा? मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मसीह के कलाम को, अब जैसे बात हो रही है, अगर मुझे यही नहीं पता कि संडे को मैसेज किया था, पिछले जुमेरात को मैसेज किया था, मैंने सुबह क्या पढ़ा था, मैंने परसों क्या सुना था, तो खुद आप अंदाजा कर सकते हैं। मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे। लिखा हो, प्रेज द लॉर्ड। हमारी दरख्वास्त, बोले दरख्वास्त, लेकिन आप एक दरख्वास्त लेके जाते हैं और आपकी हिम्मत नहीं हो रही अपने किसी बॉस के पास, भाई के पास, कहीं पे भी, और आपकी हिम्मत नहीं हो रही, आपने दरख्वास्त लिखी है जिसमें आपकी जरूरतें वाफर पूरी हो जाए, लेकिन ख्याल में कुछ रखा है, तो जिसके पास आप जा रहे हो वो दरख्वास्त क्या, वो तो आपके ख्याल को भी वो कहे कि नहीं, इसके जो ख्याल में है मैंने वो भी करना है, तो कैसा लगेगा? आप अगर दरख्वास्त और ख्याल दोनों को इकट्ठा कर ले, इनके मुआफिक हो जाए, तो कैसा लगेगा कि जो आपने सोचा है, जो दरख्वास्त लिखी है, उसके बाद अभी आपने कुछ सोचा है, लेकिन जो आपने सोचा है वो भी हो जाए, कैसा लगेगा? खुदावंद यहां भी मुतमिन नहीं है कि हम इतने में जिंदगी गुजारें।
ना, खुदावंद इतने में मुतमिन नहीं है कि दरख्वास्त और ख्याल के मुआफिक कलाम में लिखा है। दरख्वास्त और ख्याल से ज्यादा पे भी मुतमिन नहीं है। पढ़ ले, वहां पर भी मुतमिन नहीं है। कितने बहन भाइयों को समझ आ रही है? जरा गौर करें ना, खुदावंद की जाते इलाही को समझे तो सही कि खुदावंद हमारे लिए करना क्या चाहते हैं। खुदावंद हमारे लिए करना क्या चाहते हैं, क्या दिल रखते हैं। लेकिन प्रिंसिपल उसके होंगे, असूल उसके होंगे, असूल हमारे नहीं होंगे कि हम कैसे चलाना चाहते हैं। हाँ, वो हमें कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हम उस तरह चलेंगे, सच्चा है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन जब बात प्रिंसिपल की आती है ना, चले एक वाकया थोड़ा सा पढ़ते हैं। वाकयात मैं आपको नोट करवा देता हूं, इससे रिलेटेड, दिल की आंखें रोशन के से रिलेटेड। पुराने अहदनामा में से कितने हैं जो जिहाजी से वाकिफ है? कि ये ना सोचेगा आजकल पास जहाजी के बड़ा अपना जनाब, लेकिन उसके अंदर छिपा ही बहुत कुछ हुआ है। अब यहां पे इधर गौर सुनिएगा, हाथ ना खड़े कीजिएगा। कितने जो एलिया की रूह चाहते हैं, एलिया की रूह का दूना देना। हाँ, ये बड़ी आज सलीब के बाद है हम, और यीशु मसीह ने शागिर्दों को डांटा। यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, शागिर्द आगे गए सामरियों के शहरों में कि राह तैयार करें, उन्होंने कबूल ना किया। वापस आकर कहते हैं खुदावंद अगर कहे तो हम भी कहें जैसे एलिया ने। तो क्या था वो? ये एलिया वो कुर्बानी वाली आग नहीं है जो पहाड़ पर थी। ये वो बात कर रहे हैं कि अगर तू मर्दे खुदा, उसने कहा अगर मैं मर्दे खुदा तो आसमान से आ गए 50 गए, अगले 50 फिर गए। तो यीशु मसीह के शागिर्द भी ऐसे साथ रह के एलिया की रूह के कहते कि अगर कहे तो मांगे आसमान से आग जैसे एलिया ने मांगी थी। तो यीशु मसीह ने झिड़का उनको, तुम कैसी रूह के हो, तुम कैसी रूह के हो। और बेटा दुनिया में हलाक करने नहीं आया, वो तो जिंदगी देने आया है कि नहीं? तो आज हमें एलिया की रूह या बेटे का रूह, दिस इज द क्वेश्चन। हम शुक्रगुजार हम तमाम कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन हमारे लिए अब याद रखिएगा किसी का कोई कसूर नहीं। खुदा ने जिसकी, एलिया का मतलब क्या है? एलिया का मतलब क्या है? यहोवा खुदा है, उसकी खिदमत ही ये थी। यहोवा खुदा है, और उसने पहाड़ पर, क्या नाम था पहाड़ का? कोहे किरमल, प्रेज द लॉर्ड। यही है जी, जहां कुर्बानी गुजरानी थी, आसमान से आग आई थी। क्या नाम था? कोहे, क्या नाम था जिस पहाड़ का? नहीं भी ऐसे तो नहीं आगे जाएंगे, खोल ले भी, खोल ले, मुझे भी तो बताया ना जी। सब कोई भी अपना जनाब, पहला सलातीन 18 बाब है। तो जरा कौन सा पहाड़ है? कंफ्यूज नहीं होना ना, मुझे भी होने देना है। अब अच्छा है कि बाइबल खोले और बताए, लेकिन याद रखिएगा वो परस्तिश का पहाड़, वहां पे उसकी खिदमत थी कि लोग जाने के यहोवा खुदा है। लेकिन अलीशा के नाम के मानी उसकी खिदमत, अलीशा के नाम के मानी क्या है? खुदावंद नजात है। हाँ जी, शनेमी औरत गई कोहे किरमल पे। ये कहां पे गए थी? पहाड़ का नाम क्या है जी? ओके, चले क्लोजिंग करते हैं, उतनी देर में नाम मिल जाएगा, डोंट वरी जी। कोहे किरमल ही है, प्रेज द लॉर्ड जी। देखे ना, मैंने इसीलिए पढ़वाया कि आज शायद पास्टर की गलती निकल जाए। मैं तो रोज कहता हूं यार, जरूर जाकर ना आप लोगों ने पढ़ के नंबर रखे, जिसके पास नहीं है लेके जाए।
और इसलिए जरूर पढ़े, बार बार पढ़ेंगे जी, आज देखते कोई तो गलती की होगी पास्टर साहब ने, और हमसे होती है, डोंट वरी। वक्त क्लोजिंग की तरफ जाता है, लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने कहा है, जिहाजी और अलीशा, कितने जानते हैं अलीशा को और जिहाजी को? लेकिन आज मेरी दरख्वास्त है, इस पर गौर करें हम सभी। मैं अपने हम खिदमत भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आज अलीशा हमारा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। आज हमारा अलीशा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और जिहाजी कौन है? मैं और आप। क्योंकि वहां पे लफ्ज यूज क्या हुआ? जिहाजी क्या था? अलीशा का खादम। तो मेरे और आपके लिए चप्पे चप्पे पे लेसन है, निकल जाए, बच जाए। फानी चीजें कुछ नहीं देंगी, रूहानी में जिंदगी है, आलम बाला की चीजों में जिंदगी है। याद रखिएगा अलीशा, अब अलीशा और जिहाजी इकट्ठे हैं और चारों तरफ से रथों ने घेर लिया है। तो जिहाजी का सांस ऊपर का ऊपर है, नीचे का नीचे है, अलीशा पर सुकून है। कितनों को समझ आई है? दिल की आंखें रोशन मामूली बात नहीं है, क्योंकि अलीशा के दिल की आंखें रोशन थी, जो जिहाजी नहीं दे, सिर्फ जिहाजी नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी बंदा, दुनियावी लोग नहीं देख सकते थे, वो सिर्फ वही देख सकता था जिसके दिल की आंखें रोशन। जिहाजी को उस वक्त दुश्मन के रथ नजर आ रहे जिन्होंने चारों तरफ से घेरा है। और अभी मेरे गेट पे खड़े आज बात हो रही थी बेदीनी, मैं डिनाई नहीं करता कि बेदीनी, लेकिन मुझे ये बताएं बेदीनी कब नहीं थी? आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि कायनात का खूबसूरत तरीन वक्त है। बात तो सिर्फ ये है कि मेरा दिमाग कहां, मेरा दिल कहां, मैं क्या सोचता हूं। इस बात पे गौर करें कि नूह मर्दे खुदा के दिनों में कितने लोग रास्तबाज थे, कितने लोग खुदा को जानने वाले थे। आज हम बदी को क्यों अपने ऊपर, उसको अपने ऊपर हवासों पे चढ़ाना चाह रहे हैं? कायनात का खूबसूरत तरीन ये वक्त है। आज मैं आपको बता दूं, ये मामूली बात नहीं है। मेरी दुआ है कि हम निकलें और जाकर, क्योंकि उन अयाम में क्या था? 8 जिंदगियां। हर तरह से याद रखिएगा कि वो 8 लोग थे सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया तबाह बर्बाद होगी, क्या आज 8 है या ज्यादा है? फिर उसके बाद आगे देख ले, हमारे बाप इब्राहिम जब खुदावंद उस पास है अपने बंदा के और वो शफात करने लगा, तो कितने काम शुरू हुआ? 50 से। एंड कहां पे हुआ? 10 पे। 10 निकले, 10 मिले रास्तबाज। तो आज प्रेज़ द लॉर्ड, मर्दे खुदा मूसा के अयाम में शरीयत आई तो खुदा की हजूरी में कौन था? साल में एक बार सिर्फ सरदार काहन जा सकता था। आज जिस घड़ी, जिस लम्हे कोई ईमान लाता, दिल से ईमान लाता और जुबान से इकरार करता है, अगले लम्हे वो पाक तरीन मकाम में होता है। कोई बात गलत कर रहा हूं? बताएं जी, ऐसा कोई दौर था कभी? सवाल यह है कि हमारी सोचों में राज क्या कर रहा है, हमारे ख्यालों में राज क्या कर रहा है। वो शुक्रगुजार है खुदावंद के, यही नजात का दिन है और यही मकबूलियत की घड़ी है। वो इससे बढ़ के, इससे खूबसूरत दौर क्या होगा? अभी इसी घड़ी जो ईमान लाएगा, उसी घड़ी खुदावंद अपने रूह से उसे भरेगा और उसे पाक तरीन मकाम में कहेगा, आप मेरे साथ रह, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, मैंने तुझे अपने बेटे में चुन लिया। इसलिए सवाल यह है कि मेरी सोचों में क्या राज करता है, मेरे ख्यालों में क्या राज करता है, मेरे दिल पे क्या राज करता है। जो राज करता है वही तगड़ा है, उसी की आप जय जयकार करेंगे, उसी के नाम का चर्चा करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो दिल की आंखें रोशन जब होती है तो याद रखे ना, फिर मुखालफ ये क्या है, बदी क्या है, इब्लीस है या नहीं। तो उस वक्त भी जब जिहाजी को तो वो नजर आ रही है दुश्मन के वो सारे रथ, लेकिन अलीशा को पहाड़ों के ऊपर आछी रथ नजर आ रहे हैं। तो जिहाजी के लिए, मेरे और आपके लिए लेसन क्या है कि उसके कदमों में झुककर, याद रखिएगा, तुम्हारे सीखने के लिए सब कुछ है कि जिहाजी क्या हुआ?
उसने शफात की खुदावन से। अलीशा ने शफात की कि नहीं? खुदावन से शफात की कि नहीं जहाजी के लिए? खुदावन इसकी आंखें खोल, वो इसकी आंखें खोल जहाजी की, ताकि ये भी जिस तरह मुझे खुदावन आप दिखा रहे ये भी देख पाए। तो जैसे जहाजी ने देखा तो प्रेज द लॉर्ड, उसकी जान में जान आई। तो आज सोचे ना जरा, अगर मेरी और आपकी आज दिल की आंखें रोशन हो जाएं, क्योंकि हमारे, याद रखिएगा उस वक्त अलीशा जहाजी की शफात कर रहा है, आज मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ मेरी और आपकी शफात कर रहे हैं कि नहीं? सवाल यह कि हम तैयार हैं, हम अपना आप सुपुर्दगी के लिए तैयार हैं। देखिए ये बात मेरे और आपके लिए, अगर हम सुपुर्दगी के लिए नहीं, अगर हम सुपुर्दगी नहीं देते तो वो कैसे करेगा? आमीन, हालेलुया। एक और वाक्य आपके साथ शेयर कर लूं, जुबानी। ओके, घर जाकर मरकस की इंजील में से पढ़िएगा, और उसमें एक बात जरूर है, उसमें वैसे हंसने वाली भी बात है और गौर करने वाली भी है। एक नबीने को लाए यीशु के पास, मेरे जैसे, हाँ पास 2 मिनट बैठिएगा, सिर्फ बैठिएगा प्लीज, ये सेशन मेरा है अभी। ओके, आपको हंसी की बात बताऊं, और मैं माजरत भी करूंगा अगर किसी को मेरे हम खिद वैसे लगनी नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात है नहीं। वो वहां लाके पता क्या कहते हैं, खुदावन हम इसे ले आए हैं और तू इसे छू और इसे शिफा दे। तो मुझे हंसी आ रही थी, हम कहते हैं टच, होली स्पिरिट टच। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा लेसन मिला इसमें से, कि जो लाए थे वो यीशु मसीह से कहते हैं टच, तो यीशु मसीह ने कहा नो, मैं वो थोड़ी करूंगा जो तुम कहते हो, मैं वो करूंगा जो मेरा बाप कहता है। पढ़ना है, आए एक लम्हा के लिए आयत पढ़ लेते हैं। ये ऐसा ना हो कि मैं अपने पास से, मेरी रूह खुदावन में शाद है, मैं इसमें मतलब ये कि भाई मैं कह रहा वाह खुदावन आपके काम जो है ना वो बड़े अपना जनाब आए। ये आखिरी बात है वाकई, प्रेज द लॉर्ड। मरकस, मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत निकाल ले तो कहे आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की। दोनों चीजें बहुत अच्छी है, सलूट देम, मैं खुद दिल से उनका सलूट, कि वो अंधे को किसके पास लाए? यीशु के पास लाए, और फिर यीशु की मिन्नत की। गुड, ये मेरे और आपके जिम्मे है। अगला काम जो है ना वो देखिएगा जरा, वो क्या है? मिन्नत की और उसे, मिन्नत की कि उसे छुए। अब वो कहते टच जीसस, टच। आगे देखिए यीशु ने क्या किया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्यों जी, कुछ अगर मैंने गलत कहा तो बता दे। उन्होंने क्या कहा यीशु से कि इसको छू। यीशु बाहर ले गए और यीशु ने वो किया जो रूल कुद्दस लीड करता है, वो नहीं जो लोग कहते हैं। सो जब हम डीप जाते हैं खुदा के रूह में, तो फिर खुदा की रूह की रहनुमाई में, आमीन, हालेलुया। ये वैसे मैंने जैसे कहा हंसी मजाक वाली एक बात थी, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं यहां पे भी सुनिएगा जरा। जो मैं बात उधर की कि जब हम नजात पाते हैं, शुक्रगुजारी खुदावंद की कि हमारी ब्लाइंडनेस जाती है, लेकिन उसके बाद जरूरत है कि हमें यीशु मसीह का टच मिले। ये यहां पर हमने क्या देखा, यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तुझे कुछ नजर आता है? तो उसने क्या कहा, आता तो है लेकिन धुंधला नजर आता है। ये आदमी जो चल रहे हैं मुझे ऐसे नजर आता है जैसे दरख्त से है, यानी नजर तो आना शुरू हो गया लेकिन क्या है? धुंधला है। तो यीशु मसीह ने फिर दोबारा उस पर अपने
और उसके बाद वो प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सो हमने नजात पाई, हम बिना जरूर हुए, लेकिन उसके बाद हमें टच की जरूरत है, ताकि जो चीजें आज रूहानी तौर पर आलम बाला की चीजें जो हमें धुंधली नजर आती हैं वो हमें क्लियर हो जाए और हम रोज बरोज उसकी कुर्बत, नजदीकी और पहचान में बढ़ते चले जाएं। आमीन।